Hello everyone, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform, and today I have come with the second part of A Living God. This story is a part of ISC class 11 new syllabus. Okay, I hope you all have watched the first part. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है. Please go and watch that video so that you can easily understand the second part, because in this particular scene we are going to get the climax and we will discuss the theme of this story, which is going to be very interesting. So without wasting any more time, let's get into the chapter, because the chapter is too lengthy and I promised you that I would try to finish the chapter within 2 videos. So yes, I have kept my promise. So this is the second part of A Living God. So now let's get into the chapter. तो पहला पार्ट में हम लोगों ने यही देखा है. शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि हामागुची एक विलेज का बहुत ही रेस्पेक्टेड और रिचेस्ट एक पर्सन है जिनको सब कोई मानते हैं. तो एक दिन उन्होंने क्या फील किया कि अर्थक्वेक आया जहाँ पे ऑल द विलेजर्स वेर सेलिब्रेटिंग अ सेलिब्रेशन देयर हार्वेस्ट. ओके, so at that particular time an earthquake came and it was not stronger, so nobody was scared, even nobody could understand except Hamaguchi, because Hamaguchi was staying at his home at that particular point of time. He did not go to the celebration, but he could easily understand that it was a long spongy kind of earthquake and it is bringing something which is very dangerous. So he looked at the sea from his thatched house and he saw that the water was going against or rushing against the wind, and it was going or rushing far away from the beach. बीच की तरफ नहीं आके बीच से दूर भाग रहा है. So this is not good sign, this is not good omen. He could understand that tsunami is coming, but he did not have that much time to pass his message to the priest. The priest would come and he would clong the Buddhist temple bell. Okay, he called his 10-year-old grandson, whose name is Tara, to give him or to pass him a lighted torch. He took the torch and he started setting all his rice stalks to fire. ओके, तो सारा जो राइस है उस पर आग लगाता चला गया. एकदम आग लगाते हुए क्या हुआ, एकदम सब सूखा हुआ था. आग एकदम पूरा धुआं के जैसा, एकदम आग कर्ल होके एकदम ऊपर उठता गया और एकदम पूरा क्लाउड जैसा बन गया. वहां पे तारा जो है वो समझ भी उसे नहीं आ रहा था कि मेरे दादाजी क्या कर रहे, उनके राजी क्या कर रहे हैं. तो वो चिल्लाता रहा कि ओजिसन वाई. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आंसर. But Hamaguchi did not answer. Why? He had no time to explain. So it shows the anxiety level of Hamaguchi. He was thinking only of the 400 lives in peril. So he did not answer why he was doing so. He was only thinking about the 400 innocent souls, those who were celebrating their harvesting over there, because he needed to save them. For a while, the child stared wildly at the blazing rice, then burst into tears and ran back to the house, feeling sure that his grandfather had gone mad. तो पहले उसने बच्चा है वो देख रहा था एकदम कैसे धुआं हो रहा है, फिर रोते रोते घर में आ गया क्योंकि उसे लगा कि मेरा उनका दादाजी जो है वो पागल हो गया है. Hamaguchi went on firing stack after stack till he reached the limit of his field. Then he threw down his torch and waited. The acolyte of the hill temple, observing the blaze, set the big bell blooming and the people responded to the double appeal. तो अब वो धुआं देख के जो हेल्पर जो प्रीस्ट है वो उसने बेल बजा दिया और 2 बार बेल बजाया. तो जो सब वहां पे एंजॉय कर रहा था, द क्लॉन्किंग ऑफ द बेल और द साउंड ऑफ द बेल कॉट देयर अटेंशन. उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, अजीब बात है, अभी ये बेल क्यों बजा रही है. ओके, सो Hamaguchi watched them hurrying in from the sands and over the beach and up from the village like a swarm of ants, and to his anxious eyes scarcely faster, for the moment seemed terribly long to him. अब वहां पे यहाँ पे Hamaguchi का घर है, वहां से देख रहा है कि सारे इंसान जो सारे विलेजर्स है दौड़ता हुआ लोग ऊपर आ रहा है. The sun was going down, the wrinkled bed of the bay and the vast sallow speckled expanse beyond it lay naked to the last orange glow.
and still the sea was fleeing around toward the horizon. अब उस टाइम सूरज जो है वो ढलने वाला है, एकदम देखना जब सूरज ढलता है तब जो वाइट सॉरी जो ऑरेंज कलर है वो और भी ज़्यादा ऑरेंज या फिर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो अब सोचो वो सी बीच में जो सैंड है उसके ऊपर वो ऑरेंज जो रे है सन का वो गिर रहा है, वो ग्लिसन कर रहा है, और तब भी सी जो है वो कंटिन्यू पीछे जा रहा है। अब क्या हुआ है देखो। Really, however, Hamaguchi did not have very long to wait before the first party of succor arrived. Okay, a score of agile young peasants who wanted to attack the fire at once. So अब देखो वहां पे राइस क्रॉप हुआ है, सबका इन्वेस्टेड मनी वहां पे है, तो सारा विलेजर जो वो सब आ गया है क्यों? ताकि वो फायर को अटैक कर सके, ताकि वो फायर को जो है बुझा सके। बट द चूजर होल्डिंग आउट बोथ आर्म्स स्टॉप देम, कि अब लेकिन वहां पे बीच में हामागुची आके हाथ ऐसे करके बोले नहीं, आप लोग ये आग जो है आप लोग ये आग नहीं बुझाओगे। लेट इट बर्न लैड्स, इसे जलने दो। ही कमांड्स लेट इट बी, आई वांट द होल म्यूरा शेयर, देयर इज अ ग्रेट डेंजर। ताहिंदा, ताहिंदा मींस ओ गॉड ऑफ हेवन, कि नहीं यू प्लीज डोंट एक्सटिंग्विश द fire, okay, इसे बुझाओ मत। I want all the people to come here. Why? Because there's a great danger. Tayanda, oh my God, oh heaven. The whole village was coming and Hamaguchi counted. See, Hamaguchi had known exact number of people. He started counting so that all the people were there. All the young men and boys were soon on the spot, and not a few of them more active women and girls. Then came most of the older folk and mothers with babies at their backs. ये सारा कीवर्ड है, मार्क कर लो। and even children, for children could help to pass water and the elders to feeble to keep up with the first rush could be seen well on their way up to the steep ascent. तो अब एक के बाद एक सबको आ गया सर, ओल्डर फोक आ गया है, मदर्स विद बेबीज भी आ गया है, ठीक है, और बच्चा जो है वो सब ऊपर धीरे धीरे आ रहा है। द ग्रोइंग मल्टीट्यूड स्टिल नोइंग नथिंग लुक्ड ऑल्टरनेटली, मतलब एक दूसरे को ऐसे देख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इन सॉरोफुल वंडर एट द फ्लेमिंग फील्ड्स लुक्ड flaming fields and at the impassive face of their chooser. Impassive face means without any sense, okay, and the sun went down. तो सारा लोग वहां पे एकदम आके गैदर हो गया, वो लोग हर एक दूसरे का फेस देख क्या हो रहा है, आग क्यों लगा दी यहाँ पे, ओके। और हामागुची एकदम चुपचाप सी की तरफ ऐसे देख रहा है, because he could understand that the tsunami is coming. So he was having an impassive face at that particular point of time. ये कीवर्ड इसे मार्क कर लो। Grandfather is mad. I am afraid of him, sobbed Tara in answer to a number of questions. He is mad. He set fire to the rice on purpose. I saw him do it. अब तारा वहां पे चिल्ला रहा है, उसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि ये क्यों किया इन्होंने, तो वो बोला नहीं मेरे दादाजी पागल हो गया, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि उन्होंने आग लगाया कि सब मेरे दादाजी पागल हो गया। As for the rice, cried Hamaguchi, the child tells the truth. I set fire to the rice. Are all the people here? अब Hamaguchi अब जाके चिल्ला, हाँ 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 ये ठीक बोल रहा है, मैंने आग लगाया, सब कोई यहाँ पे है कि नहीं, मुझे बस इतना बताओ। The Kumicho and the heads of the families looked about them and down the hill and made reply, all are here or very soon will be. We cannot understand this thing. अब फैमिली का जो है उन्होंने कहा हाँ सबको यहाँ पे आ भी जाएगा, लेकिन हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। किटा मतलब देखो, shouted the old man at the top of his voice pointing to the open. Say now if I be mad. तो किटा मीन्स लोग देखो वहां पे सी की तरफ देखो और अब बताओ क्या मैं पागल लगता हूं तुम लोगों को, क्या मैं पागल हूं। थ्रू द ट्वाइलाइट ईस्टवर्ड ऑल लुक्ड एंड सॉ द एज ऑफ द डस्की होराइजन, अ लॉन्ग लीन डीम लाइन लाइक शैडोइंग ऑफ अ कोस्ट वेयर नो कोस्ट एवर वाज। ये सब मार्क करते रहो, इंपॉर्टेंट है। अ लाइन दैट थिकेंड एज दे गेज, तो वहां पे दूर एक कोस्ट टाइप के एक थी लाइन एक मतलब वो लोग देख पा रहा है जो कि वहां पे कोई कोस्ट नहीं था। अब धीरे धीरे वो जितना देख रहे हैं वो लाइन जो है वो बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि वही जो है वो इनॉर्मस वेव है उसे देख रहा है, तो एकदम दूर है अभी, तो वो एकदम पतला सा दिख रहा है। अब जितना देख रहा है वो बड़ा हो रहा है, यानी कि वो वेव जो है वो सामने आ रहा है। The broadened as a coastline broadens to the eyes of one approaching it, yet
yet incomparably more quickly, for that long darkness was the returning sea, towering like a cliff and coursing more swiftly than the kite flies. अब वो जो है जो सी पीछे जा रहा था वो बहुत स्पीड लेके बहुत तेजी से वो सामने आ रहा है, इतना जोर से आ रहा है कि हवा पे जब काइट उड़ता है तो जितना जल्दी वो उड़ता है ना उससे भी ज्यादा वो जो है वो जो है सामने आ रहा है. Tsunami shrieked the people, and then all shriek, and all sounds and all powers to hear sounds were annihilated. Annihilated means vanished by a nameless shock heavier than any thunder. तो अब वो लोग चिल्ला कि सुनामी सुनामी, और सडनली उन लोगों का वॉइस जो है वो सारा वॉइस दब गया. किससे दब गया? वो जो वेव है जो आ रहा है उस वेव का इतना आवाज है, इतना मतलब जो हुंकार है या फिर रोर है उसके लिए उन लोगों का हियरिंग पावर भी वैनिश हो गया. मान लो कि वो लोग सुनाई नहीं दे रहा है और वो लोग जो चिल्ला रहा था सुनामी सुनामी वो साउंड भी वैनिश हो गया. ओके, एज द कोलोसल स्वेल स्मोट द शोर विथ अ वेट दैट सेंट अ शडर थ्रू द हिल्स एंड विथ अ फोम बस्ट लाइक अ ब्लेज ऑफ शीट लाइटनिंग. तो अब क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो वेव आ रहा था, वो लोग चिल्ला रहा था कि सुनामी सुनामी सुनामी, लेकिन उस वेव का आवाज इतना ज्यादा था कि उन लोगों का आवाज धीरे धीरे वैनिश हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है. और अचानक उन लोग का हियरिंग पावर भी मान लो कि वैनिश हो गया, बंद हो गया, उन लोग का कान बंद हो गया. क्यों? जब वो वेव जो है वो आके एकदम कोस्ट पे आया, और ऐसे कोस्ट पे आया कि मानो को एकदम पूरा धरती को हिला दिया, एकदम ओके पूरा धरती को हिला दिया. और फोम जो है मतलब वो, अब सोचो उस टाइम रात मतलब इवनिंग हो गया, राइट, द सन हैज ऑलरेडी सेट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि वेव इतना ज्यादा वेव आया कि एकदम पूरा नीचे दिख रहा है कि एकदम वाइट पूरा फोम है, वाटर का पूरा फोम. और इतना जोर से वो वेव आया, इतना जोर से अटैक किया शोर को कि मान लो कि एकदम हर एक मतलब उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. मान लो कि एकदम पूरा धरती को पूरा वो जो है वेव जो है वो पूरा एकदम हिला दिया. नेक्स्ट, देन फॉर एन इंस्टेंट nothing was visible but a storm of spray rushing up the slope like a cloud, and the people scattered back in panic from the mere menace of it. और कुछ दिखाई नहीं दिया, बस फोम और फोम ही उन लोगों को दिख रहा था. When they looked again, they saw a white horror of sea. White horror of sea means the white foam. Okay, white horror of sea raving over the place of their homes. अब वो लोग दे रहे हैं, नीचे विलेज है, उन लोग का घर है, देख रहा है एकदम व्हाइट हॉरर, व्हाइट फॉर्म उन लोगों के घर के ऊपर भी आ रहा है. इट ड्रू बैक रोरिंग एंड टीयरिंग आउट द बोल्स ऑफ द लैंड एंड इज वेंट. मतलब उन लोग का घर था ऐसे, ठीक है, एकदम वेव आया, उन लोग के घर के ऊपर आया और हुंकार देते देते सब कुछ एकदम डिस्ट्रॉय करके वेव जो है लेके चला गया. Twice, thrice, 5 times the sea struck and ebbed, but each time with lesser surges. Then it returned to its ancient bed and stayed, still raging as after typhoon. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार waves आया और फिर से सब कुछ एकदम destroy करके चला गया. और each time the power was lesser than the before one. Okay, और एकदम ancient bed पे एकदम चला गया वो सी, और फिर भी वहां पे फोर्स है, वहां पे रेज अपना अपना जो प्रताप है उसके लिए वो रोर कर रहा है. On the plateau for a time there was no word spoken. All stared speechlessly at the desolation beneath. Desolation beneath means नीचे सब कुछ खाली हो गया है. The ghastliness of hurled rock and naked riven cliff. The bewilderment of scooped up deep sea wreck and shingle shot over the empty site of dwelling and temple. The village was not. The greater part of the fields were not. Even the terraces had ceased to exist, and of all the homes that had been about the bay there remained nothing recognizable except 2 straw roofs tossing madly in the offing. अब नीचे वो लोग देख रहा है, उनका घर ना घर था ना फील्ड था, कुछ भी नहीं है, दूर देख रहा है वो भी, वहां पे कुछ स्ट्रॉज ऑफिंग पे अपना सर हिला रही है, यानी कि किसी घर का छत जो है मान लो कि वो किसी भी तरह बच गया, ओके, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और वही एकदम ऐसे 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 दूर समुंदर पे
मतलब तुम्हारा दिख रहा है वहां पे, टॉसिंग कर रहा है. द आफ्टर टेरर ऑफ द डेथ escaped and the stupefaction of the general loss kept all limbs dumb until the voice of Hamaguchi was heard again observing gently. So they were still, they could not speak a single word. मानो कि उन लोगों के सामने से उन लोगों का मौत जो है उन लोगों को छू के चला गया. तो दे ऑल वर डम्फाउंडेड, दे कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड. चुपचाप था सब कोई एकदम, क्योंकि उन लोग को समझ में नहीं था क्या हुआ हम लोग के आंख के सामने. अगर एक सेकंड भी हम लोग अगर लेट करते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहता. तो वो लोग अपने आंख से अपने मौत को देखा तो वो लोग डम्फाउंडेड हो गया, स्पीचलेस हो गया. फिर हमागुची ने बात किया, दैट वाज व्हाई आई सेट फायर टू द राइस अप, यही कारण है कि मैंने आग लगाया था. ही देयर चोजा now stood among them almost as poor as the poorest. Why? Because he had invested all his money to the rice crops and he set fire to them, right? तब वो भी गरीब हो गया. For his wealth was gone, but he had saved 400 lives by his sacrifice. तो अब he is also the poorest of the poor one, but he has saved 400 lives. Little Tara ran to him and caught his hand and asked forgiveness for having said naughty things. Whereupon the people woke up to their knowledge of why they were alive and began to wonder at the simple, unselfish foresight. Mark करो, simple, unselfish foresight that had saved them, and the headman prostrated themselves in the dust before Hamaguchi Gohei and the people after them. तो अब तारा जाके उन लोगों से माफी मांगा कि मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मैंने गलत बात बोला आपके लिए. अब तब उन लोगों का जो मतलब होश मिला, उन लोगों का ज्ञान जो है वो रिटर्न आया. ओके, उन लोगों का जो वित्संबित है उन लोगों ने फिर से पाया कि अच्छा तो हम लोग जिंदा क्यों है, इस इंसान की वजह से, एक अनसेल्फिश, एक फोरसाइट की वजह से, एक फोरटेलिंग या फिर मान लो कि मतलब समझ में या सेंस की वजह से आज हम लोग जिंदा है. तो जितना फैमिली मेंबर था हेड वो लोग वहां पे नेल डाउन हो गया, उनके पीछे फैमिली का हर एक मेंबर में नेल डाउन हो गया. व्हाई? जस्ट टू पे रेस्पेक्ट टू हामागुची गोहे. देन द ओल्ड मैन वेप्ट अ लिटिल, पार्टली बिकॉज ही वाज हैप्पी एंड पार्टली बिकॉज ही वाज एजेड and weak and had been sorely tired. तो फिर वो हामागुची भी रो दिया. Why? Because उन्होंने 400 लाइफ को सेव किया है कि नहीं, और उसके बावजूद उसके मतलब वो टायर्ड भी हो चुका था. इसलिए My house remains, he said as soon as he could find words automatically, cursing Tara's brown cheeks, and there is room for many. Also the temple on the hill stands, and there is shelter there for the others. Then he led the way to his house, and the people cried and shouted. तो अब उन्होंने पहला बात यही कहा कि मेरा घर है, वहां पे आप लोग रह सकते हो, और टेम्पल भी है, वहां पे आप लोग रह सकते हो. तो कुछ लोग आप लोग मेरे घर में रहो, कुछ लोग जो है टेम्पल में आप लोग रहो. तो फिर उन्होंने क्या किया ना, सब इंसान जो है वो उन लोगों चिल्लाया, मतलब रिस्पेक्ट से, ओके, तो रोने लगा और सब कोई हामागुची के घर की तरफ जाने लगा. The period of distress was long because in those days there were no means of quick communication between district and district, and the help needed had to be sent from far away. But when better times came, the people did not forget their debt to Hamaguchi Gohei. So उस टाइम कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, तो वो जो गांव था उसे रिबिल्ड होने में, रिकंस्ट्रक्ट होने में टाइम लगा. लेकिन जब अच्छा समय आया, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, ओके, उन लोगों ने, विलेजर्स ने हामागुची गोहे का जो अवदान है अपने लाइफ में, जो कंट्रीब्यूशन उन लोगों के लाइफ में, उन्होंने नहीं भूला. दे कुड नॉट मेक हिम रिच, नॉर वुड ही हैव सफर्ड देम टू डू सो, इवन हैड इट बीन पॉसिबल. मोरओवर गिफ्ट्स कुड नेवर सफिस्ट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर रिवरेंशियल. मतलब वो लोग, हामागुची ने जो लॉस किया वो लोग वो नहीं दे सकता है, और या फिर हामागुची ने जो किया उन लोगों के लिए गिफ्ट के द्वारा उसका पे ऑफ नहीं हो सकता है. फीलिंग टुवर्ड्स हिम, फॉर दे बिलीव दैट द घोस्ट विद इन हिम इज डिवाइन, क्योंकि उन घोस्ट मतलब सोल, क्योंकि उन लोगों ने ये बिलीव करने लगा कि हामागुची का अंदर जो सोल है वो डिवाइन है, वो एक्चुअली गॉड है. सो दे डिक्लेयर्ड हिम अ गॉड एंड देयर आफ्टर कॉल्ड हिम हामागुची डाइमोजिन, thinking they could give him no greater honor, and truly no greater honor in any country could be given to mortal man. तो उन लोगों ने उनको गॉड घोषणा कर दिया, क्योंकि उन लोगों का यह मानना था कि इससे अच्छा
अच्छा, इससे ज्यादा कुछ ऑनर हो ही नहीं सकता. एंड व्हेन दे रिबिल्ड द विलेज, दे बिल्ट अ टेम्पल टू द स्पिरिट ऑफ हिम एंड फिक्स्ड अबव the front of it a tablet bearing his name in Chinese text of gold, and they worshipped him there with prayer and with ऑफरिंग. सिर्फ एक उन्होंने टेम्पल बना दिया, वहां पे एक टैबलेट पे चाइनीज गोल्ड टैबलेट पे, मतलब पीस ऑफ मार्बल या फिर कुछ ऐसे, वहां पे हामागुची का नाम भी लिखा चाइनीज में, हामागुची का मूर्ति भी वहां पे स्थापित कर दिया और ऑफरिंग्स के साथ, प्रेयर के साथ पूजा भी किया जाता था. How he felt about it, I cannot say. I know only that he continued to live in his old thatched home upon the hill with his children and his children's children, just as humanly and simply as before, while his soul was being worshipped in the shrine built. अब नैरेटर बोला कि मुझे पता नहीं था कब ये जब सब जो हो रहा था हामागुची कैसे फील कर रहा था, क्योंकि वो अपने सिंपल लाइफ ही लीड कर रहा था हाईलैंड पे अपने जो ग्रैंड चाइल्ड है उन लोगों के साथ, जहां पे नीचे श्राइन पे उन्हीं का जो स्टैचू है उसे वर्शिप या फिर पूजा किया जा रहा था. उस टाइम व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स वाज गोइंग ऑन इन हामागुची, आई डोंट नो. दैट मीन्स द नैरेटर डज नॉट नो. 100 years and more he has been dead, but his temple, they tell me, still stands, and the people still pray to ghost of the good old farmer to help them in time of fear or trouble. तो हामागुची का जो देहांत हुआ बहुत दिन हो गया, लेकिन अभी भी वो टेम्पल वहां पे है और वो जो विलेजर्स है वो लोग प्रे करता है कि कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप हम लोगों को सेव करो. ओके. I asked a Japanese philosopher and friend to explain to me how the peasants could rationally imagine the spirit of Hamaguchi in one place while his living body was in another. Also, I inquired whether it was only one of his souls which they had worshipped during his life, and whether they imagined that particular soul to have detached itself from the rest to receive homage. तो अब बोला, एक बार मैंने अपने एक जापानीज फ्रेंड को मैंने पूछा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हामागुची जहाँ पे जिंदा है आप लोग उनका सोल को कैसे वर्शिप करो, या फिर एक ही सोल है उनको आप लोग पूजा करो, या फिर देहांत होने के बाद वो सोल एक गॉड बन गया, या फिर वो अपने रिफरेंस चाह रहा है या फिर होमेज चाह रहा है, ये कैसे पॉसिबल है. द पीजेंट्स, माय फ्रेंड आंसर्ड, थिंक ऑफ द माइंड और स्पिरिट ऑफ अ पर्सन एज समथिंग व्हिच इवन ड्यूरिंग लाइफ कैन बी इन मेनी प्लेसेस एट द सेम इंस्टेंट. सच एन आइडिया इज ऑफ कोर्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न आइडियाज अबाउट सोल. तो यहाँ पे वेस्टर्न आइडियाज को रिफर किया जा रहा है कि वो बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि थिंक ऑफ द माइंड और स्पिरिट ऑफ अ पर्सन एज समथिंग व्हिच इवन ड्यूरिंग लाइफ कैन बी इन मेनी प्लेसेस एट द सेम इंस्टेंट. कि एक इंसान जब जिंदा रहता है तो उसका जो सोल है वो एक ही टाइम में डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकता है. हालांकि ये तुम लोगों का जो सोल का जो वेस्टर्न आइडिया है उससे थोड़ा अलग है, लेकिन ये है यानी कि हामागुची भाई उस टाइम जिंदा था, ठीक है, तो ही वॉज लिविंग अ सिंपल लाइफ ऑन द हाईलैंड वेयर हिज सोल, हिज स्टैचू वॉज बीइंग वर्शिप्ड डाउन देयर इन द श्राइन. सो ही इज अ सिंगल पर्सन, but there are two souls. There are two souls, so it is possible according to their culture, but this is not the part of Western culture of souls. Any more rational? I mischievously asked. अब मैंने mischievously question किया, और कुछ? Well, he responded with a Buddhist smile. If we accept the doctrine of the unity of all mind, अगर हम लोग doctrine मतलब का theory, अगर mind का जो unity है, अगर उसके ऊपर जो theory है, अगर हम लोग उसे मान सकते हैं, the idea of Japanese peasant would appear to contain at least some एडम्ब्रेशन ऑफ ट्रूथ. तो जापानीज कल्चर में जो सोल है या फिर उनका जो थियोरी है वो भी सच है. आई कुड नॉट से सो मच फॉर योर वेस्टर्न नोशंस अबाउट द सोल, बट लेकिन मुझे तुम्हारा और आप लोगों का जो वेस्टर्न जो कल्चर है जो सोल के बारे में जो कहते हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता. सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी. अब हम लोग आते हैं कि कुछ पॉइंट लाइक दिस इज अ फील गुड काइंड ऑफ स्टोरी. मान लो कि देखो कि पूरा स्टोरी पढ़ने के बाद हम लोग को अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज हमागुची गोहेई has done a good work for the welfare of the people. Even he saved all 400 people, right, villagers. So this is a feel good kind of a story, and it refreshes our mind and pushes the रीडर्स टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी भी शो कर रहा है, दर्शा रहा है कि देखो वो जिंदा है, वहां पे उन्हीं का स्टैचू, उन्हीं का सोल
पूजा किया जा रहा है। तो ये स्पिरिचुअलिटी कनेक्टिविटी भी है, इमोशनल काइंड ऑफ स्टोरी, हाँ है कि नहीं, ये भी इमोशनल काइंड ऑफ स्टोरी है। देखो तारा ने फील किया कि मैंने गलत किया है, वहां पे हामागुची ने भी रो दिया, और सारे इंसान, सारे विलेजर, उन लोगों को जब ये समझ में आया कि आज हम लोग जिंदा क्यों है, सो दे ऑल लेन डाउन इन फ्रंट ऑफ हामागुची and they thanked him, and even they wanted to give him the best honor, so they made a shrine and they put a statue, they installed a statue of Hamaguchi and started worshipping with offerings. So it also connected, it is also connected with the emotion of the people. ये गया। अब थीम पे आ जाते हैं। पहले की फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि वो थीम हो सकता है, और कुछ मान लो कि हेल्पफुलनेस एक थीम हो सकता है, क्योंकि देखो हामागुची ने हेल्प किया सारे विलेजर्स को, और फिर वो सुनामी का बात छोड़ ही दो, उसके बावजूद भी ही इज ए हेल्पफुल पर्सन। काइंडनेस, सैक्रिफाइस, ही हैज सैक्रिफाइस्ड हिज ओन क्रॉप्स। ओके, सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग। हामागुची गोहे को जब वो मतलब जो ऑनर मिल गया कि वो गॉड है, उसके बावजूद भी वो अपना सिंपल लाइफ ही लीड कर रहा था। सो इट ऑल्सो शोज द थीम ऑफ सिंपल लिविंग एंड पावर ऑफ नेसेसिटी ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हामागुची को वो नॉलेज नहीं रहता, अगर हामागुची एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो आज वो पूरा गांव जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कि नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ द power of knowledge, or because of the experience, Hamaguchi Gohei could save 400 innocent souls. So this is very important theme of this particular story, and presence of mind is also same कि उनका at that particular point of time he did not have that much time to call the priest, to inform the priest, and he would clong the bell, all the people would respond. No, he didn't have time. Somehow he had to save all those 400 innocent souls, or those 400 lives. That is the reason. उन्होंने कुछ किया नहीं किया, कुछ परवाह नहीं किया, अपना इन्वेस्टेड कैपिटल से जो राइस हार्वेस्ट हुआ था वहां पे उसमें उन्होंने आग लगा दिया, तभी जाके he could save all those 400 people. So this is the complete explanation. I hope आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों को अच्छा भी लगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that you never miss a single update, and share with your friends, ताकि उन लोगों को भी कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।